Welcome, dear students. Myself, Dr. Savita Chahar, Associate Professor, Department of Botany, Government Mira Girls College, Udaipur. Today, our topic is structural changes in chromosome, part 3. Yesterday, we have studied about the duplication and inversion type of structural changes in chromosome. The fourth type of structural changes in chromosome is translocation. Translocation is the type of interchromosomal changes. In this, a part of chromosome is transferred to another non-homologous chromosome. The term translocation is given by Bridge and Morgan. A translocation is a chromosomal rearrangement that only results into a change in the sequences and position of genes. Their quantity remains unaffected. This is the exchange of parts between two pairs of non-homologous chromosomes. The first case of translocation was found in Oinothera, which was originally described as mutation by De Vries while working for his mutation theory. Students, अभी तक जो हमने पढ़ा था पिछली क्लासेज में, कल तक जो हमने पढ़ा था, वह उसमें डिलीशन, डुप्लीकेशन एंड इन्वर्जन टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल चेंजेस इन क्रोमोसोम. इस तरह के जो स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं उसमें जो होमोलोगस पेयर है उनमें से किसी एक क्रोमोसोम के अंदर अंतर आता है, डिलीशन होगा, एडिशन होगा या इन्वर्जन होगा, या दोनों क्रोमोसोम के अंदर हो सकता है, लेकिन दोनों ही क्रोमोसोम कैसे हैं? आइडेंटिकल हैं. मान लो एक होमोलोगस पेयर है, उसके ऊपर ABCDEF जीन है, तो दूसरा जो होमोलोगस होगा उस पर भी ABCDEF जो है वो जीन होंगे. इसके पास में एक और पेयर है, वो भी आपस में होमोलोगस है, बट दिस पेयर इज नॉन होमोलोगस फॉर द अर्लियर होमोलोगस पेयर. फॉर एग्जाम्पल, उसके अंदर जो जीन्स हो वो कैसे होंगे? UVWXY हो सकते हैं, तो वो नॉन होमोलोगस हो गए. तो इसके अंदर क्या होगा? ट्रांसलोकेशन के अंदर जो चेंजेस आएगा, आपस में जो इंटरचेंज होगा जीन्स का, वो किसके अंदर होगा? नॉन होमोलोगस पेयर के अंदर. जैसे ABCDE में से कोई भी जीन जो है वह टूट करके जो पास में VWXYZ उनमें से वहां जाके जुड़ जाएगा, और उनमें से VWXYZ में से एक या दो जो जीन है या तीन जीन है का जो हिस्सा है वो निकल करके नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के अंदर चला जाएगा. और इसकी जो खोज हुई थी वो De Vries नाम के जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने म्यूटेशन थ्योरी दी, वो सबसे पहले उन्होंने ओइनोथेरा के अंदर ट्रांसलोकेशन वाला स्ट्रक्चरल चेंजेस देखे थे. देन इफेक्ट्स ऑफ ट्रांसलोकेशन. इट रिजल्ट्स इन प्रोडक्शन ऑफ abnormality in body characters in Drosophila, then causes semi-sterility. Semi-sterility का मतलब वो क्या होता है? अर्धबंध्यता and low seed setting in plants. ट्रांसलोकेशन के कारण क्या होता है? पौधों में कई बार अर्धबंध्यता पाई जाती है, या फिर उनके अंदर जो बीज हैं वो कम मात्रा में बनेंगे. Dear students, although the numerical changes in chromosomes are not in your syllabus, but this is the important part of chromosomal aberrations or mutations. So I would like to teach you the numerical changes in chromosome in brief. क्योंकि अगर आप लोगों से कोई कहे कि what are the numerical changes in chromosome,
तो आप ये थोड़ी कहोगे कि हमारे कोर्स में नहीं था इसलिए हम नहीं जानते हैं। तो अगर आप स्ट्रक्चरल चेंजेस के साथ साथ में न्यूमेरिकल चेंजेस के बारे में अगर आप जानोगे तो ही आप म्यूटेशन के बारे में पूरा, या जो क्रोमोसोमल एब्रेशंस जो हैं उनके बारे में पूरा जान पाओगे। इसलिए मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में ये समझाना चाहूंगी। Each species has a characteristics number of chromosomes in the nuclei of its gametes or somatic cells. In the nuclei of somatic cells, there are two identical members for each type of chromosomes in their nuclei, which are called homologous chromosomes. The total somatic chromosome number of a species is called a diploid number or 2n. कई बार 2x से भी लिखा जाता है. Where is the gametic cells contain single set of chromosome and called haploid number or n or x number. Normally the number of chromosomes in gametes or in somatic cells of a species remain unchanged, but sometimes in natural or in artificial conditions chromosomes number changes. तो अभी तक जो हमने प्रीवियस क्लासेस में जब न्यूक्लियस मैंने पढ़ाया, क्रोमोसोम मैंने जब पढ़ाए थे, तब आप लोगों को क्या बताया था कि क्रोमोसोम का जो नंबर है वह कांस्टेंट रहता है एक पर्टिकुलर स्पीसीज में, जनरेशन टू जनरेशन। जैसे हमारे जो ग्रैंडफादर थे उनके भी 46 क्रोमोसोम थे, फादर के भी 46 थे और हमारे भी 46 क्रोमोसोम हैं, और आगे आने वाली जो जनरेशन जो हैं उनमें भी 46 रहेंगे, इनमें कोई चेंज नहीं आता। और जो गैमेट बनेंगे मेल या फीमेल गैमेट, उनमें उनका जो नंबर है वो आधा हो जाएगा, 23 हो जाएगा, जो सभी गैमेट्स में वही रहेगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि नेचुरल कंडीशंस में या आर्टिफिशियल कंडीशंस जो लेबोरेटरी में कराई जाती है उनके कारण क्रोमोसोम के जो नंबर है उसमें चेंजेस आ जाता है, एंड दीज चेंजेस इन नंबर आर कॉल्ड न्यूमेरिकल चेंजेस इन क्रोमोसोम्स, या हिंदी में अपन क्या कहेंगे, गुणसूत्रों का में संख्यात्मक परिवर्तन कहा जाता है। The variation in chromosome number may be due to addition or loss of one or more chromosome, or sometime may be due to the addition or loss of one or more complete set of chromosome. Numerical changes are of two types, aneuploidy and euploidy. In aneuploidy, when an organism gains or loses one or more chromosome, but not a complete set of chromosomes, is called aneuploidy. Aneuploidy is again of two types, hypoploidy, loss of one or more chromosome from diploid set is called hypoploidy. देखिए स्टूडेंट्स, जब किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो डिप्लॉइड सेट है उसकी तुलना में या तो एक या एक से अधिक क्रोमोसोम या तो ऐड हो जाए या कम हो जाए, उसे कहते हैं एन्यूप्लॉइडी। पूरा सेट जो है उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, एक या एक से अधिक क्रोमोसोम या तो डिलीट हो गया है या ऐड हो गया है, इट इज कॉल्ड एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी जो है पुनः दो प्रकार की है। अगर क्रोमोसोम डिलीट हो जाता है एक या एक से अधिक तो इट इज कॉल्ड हाइपोप्लॉइडी। फॉर एग्जांपल मोनोसोमी 2n-1, जैसे धतूरे के अंदर 24 क्रोमोसोम है, उनमें से एक कम हो गया तो कितने रह जाएंगे, 23। दिस इज द टाइप ऑफ हाइपोप्लॉइडी। देन और न्यूलिसोमी, कभी कभी क्या होता है कि एक होमोलोगस पेयर जो है वो पूरा डिलीट हो जाता है तो इट इज कॉल्ड न्यूलिसोमी। देन द सेकेंड टाइप ऑफ एन्यूप्लॉइडी इज हाइपरप्लॉइडी। हाइपरप्लॉइडी में क्या होगा कि एक या एक से ज्यादा जो क्रोमोसोम है, गुणसूत्र जो हैं वह ऐड हो जाते हैं, इसे अपन कहते हैं हाइपरप्लॉइडी। फॉर एग्जांपल ट्राइसोमी,
यहाँ पर आप देखिए कि डिप्लॉइड नंबर के अंदर एक क्रोमोसोम ऐड हो गया तो इट इज ट्राइसोमी, 2 अगर ऐड हो जाएंगे तो अपन कहेंगे टेट्रासोमी। This is the types of numerical aberrations or numerical changes, aneuploidy and euploidy. Then second type of numerical changes in chromosome are euploidy. Euploidy is the addition or elimination of complete set of chromosome. यहाँ पर जो पूरा सेट है जिसे अपन n नंबर से बताते हैं, वो पूरा सेट या तो ऐड हो जाएगा या डिलीट हो जाएगा। तो दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल चेंजेस आर कॉल्ड यूप्लॉइडी। द यूप्लॉइडी अबव द डिप्लॉइड इज कॉल्ड पॉलीप्लॉइडी। एग्जांपल मोनोप्लॉइडी और हेप्लॉइड n, डिप्लॉइड 2n, more than diploidy is a polyploidy. This is 3n means triploidy, tetraploidy and pentaploidy.